कितने हुसैनी मारोगे, घर घर से हुसैनी निकले, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 हुसैनियत के नाम पर जान भी कुर्बान है, हुसैनियत के नाम पर जान भी কাশ্মীর উপত্যকার রাজপথে এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না, যেখানে সাধারণত পাকিস্তানপন্থী স্লোগান বা আজাদি ধ্বনির আওয়াজ শোনা যায়, সেখানে এবার প্রতিধ্বনিত হলো সম্পূর্ণ উল্টো সুর, পাকিস্তান মুর্দাবাদ। যে পাকিস্তানের বন্ধু সে গদ্দার, হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ। ইসলামাবাদের এক শিয়া মসজিদে বিস্ফোরণে ৩০ জনেরও বেশি নিরীহ উপাসকের মৃত্যু কেবল পাকিস্তানকেই নাড়িয়ে দেয়নি, তার ঢেউ আছড়ে পড়েছে ভারতের জম্মু কাশ্মীরেও। বিশেষ করে কাশ্মীরের শিয়া অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ক্ষোভ এতটাই তীব্র আকার নিয়েছে যে বহু বছর পর উপত্যকায় দেখা গেল প্রকাশ্য পাকিস্তান বিরোধী বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভ শুধু একটি সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ নয়, এটি পাকিস্তানের রাষ্ট্র চরিত্র, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং শিয়া নিহতহানির দীর্ঘ ইতিহাসের বিরুদ্ধে জমে থাকা ক্ষোভের বিস্ফোরণ। শুক্রবার দুপুরে জুম্মার নামাজের সময় ইসলামাবাদের একটি ব্যস্ত এলাকায় অবস্থিত খাদিজাতুল কুবরা মসজিদে আচমকাই বিস্ফোরণ ঘটে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী বিস্ফোরণ ঘটে নমাজ চলাকালীন। মসজিদের ভেতরে এবং আশেপাশে আতঙ্ক ছড়ায়, একাধিক মানুষ আহত হন, জানে শেষ হয়ে যান বহু মানুষ। পাকিস্তান প্রশাসনের দাবি এটি একটি জানে শেষ করে দেওয়া হামলা। এই নৃশংস হামলার খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় বিক্ষোভ। প্রথমের দিকে যেটা দেখা যায় যে বান্দিপোরা জেলার সুম্বল, তারপর বারামুল্লার পাট্টার, একটির পর একটি শিয়া প্রধান এলাকায় মানুষ রাস্তায় নামতে শুরু করেন, হাতে প্ল্যাকার্ড, মুখে স্লোগান, চোখে ক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় পাকিস্তান মুর্দাবাদ, जो पाकिस्तान का यार है वो गद्दार है। অনেক জায়গায় পাকিস্তানের পাশাপাশি সৌদি আরব ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধেও স্লোগান ওঠে, যা মধ্যপ্রাচ্যের রাজ্য রাজনীতিতে শিয়াদের প্রতি বৈষম্যের প্রসঙ্গকেই সামনে আনে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এই বিক্ষোভগুলো স্বতঃস্ফূর্ত, কোনো রাজনৈতিক দলের ডাক নয়, কোনো সংগঠিত মিছিল নয়, বরং সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে শিয়া যুব সমাজের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। বারামুল্লার হানজিওরে এলাকায় শিয়া স্থানীয়রা শ্রীনগর বারামুল্লা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন, হাতে ভারতের জাতীয় পতাকা, মুখে পাকিস্তান বিরোধী স্লোগান। এই ছবি কাশ্মীরের রাজনীতিতে এক বিরল মুহূর্ত। এক বিক্ষোভকারী বলেন, এই হামলা নতুন কিছু নয়, গত 10 থেকে 15 বছর ধরে পাকিস্তানের শিয়া নিধন চলছে, আমাদের মুছে ফেলতে চাওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমরা মুছে যাব না। আর এক বিক্ষোভকারীর বক্তব্য আরো স্পষ্ট, পাকিস্তান মুর্দাবাদ স্লোগানটা সাধারণ পাকিস্তানি মানুষের বিরুদ্ধে নয়, এটা সেই প্রশাসন ও সরকারের বিরুদ্ধে যারা দেশের আর্থিক সামাজিক অবস্থা সামলাতে ব্যর্থ হয়ে সন্ত্রাসকে লালন করছে। এই বক্তব্যেই ধরা পড়ে কাশ্মীরি শিয়া মুসলিমদের অবস্থান। তারা ধর্মের নামে সন্ত্রাসকে প্রত্যাখ্যান করছেন এবং পাকিস্তানি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই দায়ী করছেন। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে একজন প্রশ্ন তোলেন, যা এই পুরো ঘটনার কেন্দ্রে, কি ধরনের মানসিকতা মানুষকে নামাজরত অবস্থায় অন্য মানুষকে মারতে প্ররোচিত করে, কি ধরনের মতাদর্শ শিশু, মহিলা আর নিরীহ মানুষদের রক্ত ঝরাতে শেখায়। বিক্ষোভকারী কি বলছেন শুনবো। हमला हुआ पाकिस्तान में, ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 10 साल 15 साल से हो रहा है और हम पुरजोर सब जो यहाँ पर जमा हुए हैं हम इसको कंडम कर रहे हैं। देखिए जो ये आज हो रहा है, बल्कि मैं ऐसा कहूं, मुझे हंसी आ रही है इस बात पे, आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता है अगर हम बात करेंगे हमारी कुर्सी गई। ये जो टैक्टिक्स है ये पिछले 14 साल से चल के आ रहे हैं, शिया को मारना ये खत्म हो जाएंगे, हम खत्म नहीं होंगे, ऐसे हम खत्म कहां होंगे। खत्म करना है ईरानी कौम को खत्म करो, अगर खत्म करना है आ जाओ। बोल रहे हम आर्माडा लेके आ रहे हैं, अब्राहम लिंकन लेके आ रहे हैं, कल एक ड्रोन जो जिसकी कीमत $20,000 है, $20,000 वो हम अब्राहम लिंकन के अंदर घुस गया, पूरी इंटेलिजेंस शेयर की
और फिर मारा, वो उस फिर मारा, फिर बता रहे हमने उसको मारा, हमने मार कर गिरा, शूट डाउन किया, वो भी उसकी कॉस्ट $2 मिलियन है उस एक मिसाइल की। और ये इसी की बड़ास निकाल रहे हैं हम पर, जो ऑपरेसर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जो ऑक्यूपाइड टेररिस्ट उन्होंने जमा किए हैं, उनके अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं। फलस्तीन के आगे हम सामने आ रहे हैं बैटल फील्ड में, और ये हमसे लड़ रहे हैं, इसकी बड़ास निकाल रहे हैं। बल्कि आज नहीं, पिछले 15, 20 साल, 30 साल, 40 साल उठाओ, यहाँ पर भी ये हुआ है। बल्कि आज हम हिंदुस्तान में हैं, हमें प्राउड है इस पर, हम इंडियंस है, प्राउड है, प्राउड है, प्राउड है इस पर, हम इंडियंस है। और हम इसको बाज़ाब्ता तौर पर कंडम कर रहे हैं, सारे यहाँ पर पुरजोर अल्फाज में हम इसको मजम्मत कर रहे हैं, इस बर्बरियत, इस जुल्म और वहदानियत आज के दौर में, जहां पर जाहिलियत का कोई मौका ही नहीं है। ये जो আর এক বিক্ষোভকারী তিনি কি বলছেন শুনবো। आज हम जो यहाँ पे जमा हुए जुलूस की सूरत में, इसके पीछे लॉजिक यह है कि हम बिल्कुल कासिर है ये समझने से कि किस तरह से एक इंसान जो है दूसरे इंसान को मस्जिद में दौरान इबादत शहीद करता है, कत्ल करता है। ये कैसी सोच है, ये कैसी दहशतगर्दाना सोच है जो लोगों को मस्जिद में जाके अपने आप को बम ब्लास्ट करके दूसरे लोगों का जो है खून बहाता है। ये कौन सी हुरे है जो इनको बुलाती है और अपने आप को उड़ा के मस्जिद में नमाज गुजारों को कत्ल करके इनको एक कौन सी हुरे मिलने वाली है? ये कैसी मानसिकता है, कैसी आइडियोलॉजी है जो इनको इस बात पे उकसाती है, फोर्स करते हैं कि आप मस्जिद में जाके दूसरे मासूम लोगों को, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान जो है उनकी जिस्म के टुकड़े भी नहीं मिले, और ये कैसी सोच है जो इनको इस पर उकसाती है और कहती है कि आप जहाद करते हो। अगर ये जहाद है तो इससे बेहतर है कि हम अपना जहाद जो है अपने घर में ही रखें, इससे बेहतर है कि हम अपने आप ही मर जाए। ये कोई जहाद नहीं बल्कि एक वहशाना और दर्दनाक हमला है जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम जब पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा देते हैं, इसका मतलब और मकसद हरगिज ये नहीं कि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद, जो वहाँ के लोग हैं, अवाम है, उनको मुर्दाबाद कहते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का सेटअप, वहाँ की गवर्नमेंट जो इलॉजिकल है, जिनकी फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिकल डिक्लाइन इतनी हो चुकी है कि पूरी दुनिया में उन पे तू हो रही है, लानत पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो अलगाववाद में, आतंकवाद में लगी हुई है और सिर्फ अपने ही लोगों को शहीद करने में, कत्ल करने में लगे हैं। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, एक ऐसी जमात जो मस्जिद में जाकर धमाका करती है और नमाजियों को कत्ल करते हैं, और इन लोगों को जो नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में, इनको एक काफिर कहते हैं और खुद ये कहते हैं कि हम शहीद होके हुरू से मिलने जाएंगे। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।